बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है बोध गया टेम्पल टूर महाबोधि टेम्पल बिहार। और ये जो है हमें वीडियो सजेस्ट की थी अनुष्टुप मिश्रा ने। और मुझे तो वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है टेम्पल्स देखने का, चर्च देखना, मतलब डिफरेंट रिलीजन को एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगता है। और मौसम को भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में। एनीवे आज हम देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं टेम्पल एंड देन विल डिस्कस कि हम लोगों को कितना मजा आया। लेट्स स्टार्ट मोर द वीडियो। The land of enlightenment. This video is very close to my heart as I was born in the same state, Bihar, and I had been surrounded with the ideology of Buddhism right from my childhood. Bodh Gaya is where Gautam Buddha attained supreme enlightenment, and since then it has become religious center and people come here to see Mahabodhi temple and Bodhi tree. Bodh Gaya is located in Gaya district of the North Indian state of Bihar. You can reach Bodh Gaya by flight. There are few direct flights from several major Asian countries. Or you can also come via Patna through road or rail. The best time to visit Bodh Gaya is winters, which is usually busy, and temple is generally decorated with thousands of marigold. Bodh Gaya is a small town and everything is within 2-kilometer radius from the temple complex, including hotels, restaurants, shops, etc. You can get e-rickshaw for temple hopping. We hired one for ₹300 for a day. सही है ना? We started our journey from the famous Mahabodhi temple and Bodhi tree. The beautiful Mahabodhi temple complex houses the famous Bodhi tree and the temple. अच्छा, बोधि ट्री के बारे में भी मैं कुछ पढ़ रही थी, लेकिन वैसे मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आया कि मतलब इसके पीछे क्या स्टोरी है। अच्छा बनाया ना? Bodhi tree is one of the most famous tree of the world, where Prince Siddhartha gained his enlightenment and his philosophy spread through Asia and beyond without any military crusade. Today people come to pay homage to the Bodhi tree, which is the fifth descendant of the original tree. The stupas and shrines were built to show the 7 weeks the Buddha spent here. On one side are large carved lotus flowers representing the footsteps of Buddha. Inside the temple, you will see the black stone image of the Buddha in the earth-touching posture. ये क्या है? नहीं मालूम। We next went to see the great Buddha statue. This is the other most visited place in Bodh Gaya.
This statue is 64 feet high with Lord Buddha in a seated meditation pose. This beautiful structure is made up by a mixture of sandstone and red granite. It was installed by 14th Dalai Lama in 1989. After that, we went to this beautiful Tibetan monastery. It is very colorful from inside. The monastery has an image of the future incarnation of Lord Buddha. ऐसे अक्सर देखते हैं ना वीडियोस में भी, सब प्यारा है, तो रॉयल सा लुक दे रहा ना, मेंटेन बहुत अच्छा किया गया है। गोल्ड का टच दिया हुआ, इस वजह से भी रॉयल लग रहा है। We next went to Karma Temple. The temple wall is finely depicted with the paintings of the event of Buddha's life. Next, we went to Daijokyo Buddhist Temple, situated next to the Great Buddha statue. After that, we next went to this beautiful Tibetan temple having a big dharma chakra. अच्छा, ये भी मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उस मूवी में भी है, जब वी मेट में। मे बी, आई गेस, हाँ। Next, we went to see Royal Bhutan Monastery. It was built by the King of Bhutan as a tribute to Lord Buddha. The monastery features a unique traditional architecture which allures tourists from all over the world. We went to see the beautiful Thai temple. The temple is adorned with sloping and curved roofs that are covered with golden tiles. बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। There is a beautifully carved gigantic bronze statue of Lord Buddha inside the temple. अच्छा, ये बिल्कुल बना हुआ ऐसे इस शेप में है ना। Next, we went to Indosan Nippon Japanese temple. This beautiful temple is made up of wood representing Japanese style architecture.
preachings of Lord Buddha on the walls of the temple. In the end, we went to see Chinese temple. This temple displays Chinese architecture style and has been decorated with Chinese designs all over. Please like and share this video and don't forget to subscribe to the channel. It keeps me motivated to post new videos. Thank you. बहुत अच्छी थी, सही बात है। बहुत अच्छी बनाई सच में। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो जो है मेरा ख्याल है हमने जितनी भी वीडियोस देखी उनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी टेम्पल्स थे वो सब डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे, जहाँ पे हाँ उनके आर्किटेक्चर को, और वहाँ पे ये भी बताए थे कि इन देशों में जो लॉर्ड बुद्धा है उनके मानने वाले लोग यहाँ पे हैं। बेसिकली जो आज के हम लोगों ने टेम्पल्स देखे हैं वो सारे लॉर्ड बुद्धा के मानने वालों के हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने डिफरेंट जगहों पर एक ही वीडियो में डिफरेंट कंट्रीज के जो मानने वाले लोग हैं उनका तरीका, फिर उनके टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, वो सब चीजें दिखाई। और ऑनेस्टली मैं इसमें यहाँ पर पहले बोलना चाहती हूँ, इससे पहले कि मौसम बोलते हैं, मुझे थाई जो टेम्पल था वो बहुत खूबसूरत लगा सीरियसली। वैसे सारे टेम्पल्स बहुत खूबसूरत थे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन थाई टेम्पल का आर्किटेक्चर मुझे बहुत प्यारा लगा। वैसे अगर बात की जाए तो सब जो है अपनी अपनी उनकी एक खूबसूरती थी, किसी की खूबसूरती को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वाकई में थाई वाला जो टेम्पल है वो बाकी बहुत प्यारा था। लेकिन अगर एक रॉयल लुक के हिसाब से बात की जाए ना, तो उसमें जो तिब्बत का जो बना हुआ था ना टेम्पल, वो बहुत ज्यादा जो है अच्छी जो है ना लुक से रॉयल लुक दे रहा था। तिब्बतन मॉनेस्ट्री जो थी उसमें जो कलर यूज किए थे स्पेशली, मतलब फिरोजा गोल्ड कलर और पिंक, आई थिंक पिंक ही आएगा ना, और कुछ इसी टाइप का, बिल्कुल मतलब कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। अच्छा वैसे इसमें वो जो कलर था, तो तुम्हें याद है हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत बड़ा एक टेम्पल बन रहा है, तो उसके भी जो गुंबद है वो याद है, वो भी फिरोजा कलर का बन रहा है और गोल्ड और फिरोजा का, तो उस टाइम पर भी कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। बिल्कुल। और अगर थोड़ी सी और बात की जाए, इसमें जो चक्रा थे जो इन्होंने दिखाए थे, धर्म चक्रा, वो हमने मूवीज में भी देखे हैं। हमें अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि हमने कौन कौन सी मूवीज में देखे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना, मैंने उस मूवी में, जब वी मेट मूवी में वो देखे हैं। क्योंकि उसमें जो वो वाला सॉन्ग है, हाँ क्या ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, तो तिब्बत वाली साइड मुझे लग रही है। यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है वो ऐड करना चाहेंगे। जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि का मतलब है ग्रेट अवेकिंग टेम्पल। वाह। और बोध गया टेम्पल इज अबाउट 96 किलोमीटर फ्रॉम पटना। और अगर मैं भी मौजम से बात करी थी कि मौजम के विकीपीडिया में 96 किलोमीटर दिखा रहा था, और मेरे विकीपीडिया में वो 100 समथिंग दिखा रहा था, तो मौजम मुझे कह रहा था कि क्या एंड्रॉइड और एप्पल का विकीपीडिया डिफरेंट होता है क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जगह जो है एक बहुत बड़ी जो है तिलक यात्रियों की डेस्टिनेशन है, जिनमें हिंदूज और बुद्धिस्ट शामिल हैं, जो कि पिछले 2000 सालों से यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। और ये निरंजना रिवर के किनारे पर वाक़या है, और सबसे पहले किंग अशोक ने यहाँ पर टेम्पल बनवाया था। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी और बात की जाए, 18वीं सदी तक इसका जो नाम था वो था उर्वेला संबोधि, और 18वीं सदी के बाद इसका नाम जो है बोध गया पड़ गया। और पटना और बोध गया के दरमियान में जो बस सर्विसेज है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी BSTDC ने वाया राजगीर। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से जो है वंडर ऑन व्हील्स नाम से जो है एक बस सर्विस जो है वो कारवान की सूरत में चलाई जाती है। और यहाँ पर ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि यहाँ पर रिक्शा और कार्स, बसेस, वो सब कुछ बैन है, लाइक जो अगर हम लोग प्राइवेट बोल सकते हैं ना। हाँ। और अगर कुछ जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि ई रिक्शा जो उनसा है बस वो अलाउ है, और वो हम लोगों ने देखा भी। और अगर वाकई उसकी बात करें तो एक दिन के लिए 300 उसका जो है वो कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, बहुत नॉर्मल वो चार्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज है कि अगर आपने कार या बस इस एरिया में लेके आनी है तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिट चाहिए। और ई रिक्शा
के पीछे भी ये मतलब स्टोरी कि नॉइस नहीं होनी चाहिए आप, क्योंकि वहां पर शांति के लिए आ रहे हो, सुकून आपको लेना, वैसे तो शांति तो वाकई नजर वहां पे आ रही थी, जितने सुकून से लोग थे, कोई वो ज्यादा वो कहते ना खिच खिच होना वो नहीं थी, लोग भीड़ नहीं थी, लोग इतने ज्यादा नहीं थे। अगर टेम्पल्स के अंदर भी बात की जाए तो टेम्पल्स के अंदर भी लोग नहीं थे। और टेम्पल्स के अंदर एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां तक वो एरिया उन्होंने रखा हुआ है टूरिज्म के लिए या जो लोग वहां पे पिलग्रिम्स आते हैं उनके लिए एक एरिया रखा है। बाकी जो एरिया जो दूसरा था उसमें डिफरेंट चीजें मुझे लगता है कि उन्होंने रखी हुई थी। अच्छा, मुझे ये लगता है मौसम के ना, शायद ये जो हम लोगों ने अभी वीडियो देखी ना, इस टाइम पर ज्यादा लोग इसलिए भी नहीं थे क्योंकि अगर जैसे होता है ना कि कोई हर रिलीजियस ओकेजन होता है, फिर उस पर मुझे लगता है लोग ज्यादा होते होंगे। अभी तो मेरा हाल में रूटीन लाइफ में भी इतना, या जिस तरीके से क्रिश्चियंस हैं वो चर्च जाते हैं संडे को, या मुस्लिम्स फ्राइडे को ज्यादा मे बी इनका भी एक दिन होता हो जहां पर वो लोग ज्यादा ग्रुप्स में इकट्ठे होते हो। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से मेडिटेशन और एक आप सुकून लेना चाहते हो तो वो चीजें वाकई में इधर जाकर देखकर पता चलता है। और मुझे लगता है शायद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी वहां पर करवाते हो जब कोई स्पेशल ओकेजन्स होते होंगे। और यहाँ पे छोटी सी चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग में हमने जो है लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू देखा था, उसके बारे में जो है मुझे बहुत एक हैरानी हुई कि वो जो है 14 दलाई लामा जो है उन्होंने 1989 में उसे इंस्टॉल किया था वहां पे। तो बहुत मैं कहता हूँ कि जिस तरह का वो बना हुआ है ना, जो जिस तरह उन्होंने बनाया है, तो सल्यूट है सबको भी। और बाकी में जो पोस्टर है वो भी बड़ा अच्छा है कि एक मेडिटेशन वाला, आपको लग रहा है कि आप सुकून में हो, तो मतलब अच्छा लगता है ओवरऑल देखकर। और मुझे तो वाकई में बहुत अच्छी लगी वीडियो, और मैं बोलूंगी कि आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं ना और हमारे व्यूअर्स उसको लाइक करते हैं तो हम और मोटिवेट होते हैं कि नहीं अभी नेक्स्ट वीडियो और बनानी है। एनीवे ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छा लगा और वीडियो भी बहुत अच्छी थी, ब्लॉग बहुत अच्छा था। इसी के साथ इजाजत, अच्छी वीडियोस ऐसे सजेस्ट करते रहे ताकि हम और ज्यादा कल्चर देख सकें। और इसी के साथ इजाजत, वीडियोस करें, हमारे चैनल वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।